Hello बच्चों, today we will discuss inequality with the help of wavy curve method. So students, we have few steps. So step number 1, factorize the polynomial. Second, make the coefficient of variable of all the factor positive. Third, find the roots of inequality by equating each factor to 0. Fourth one, plot the points on the number line. And fifth one, put positive on the extreme right and start moving towards left. Then last one, for odd power factor, change the sign. For even power factor, continue with the same sign. So let's start with the example. So we have one example, that is x minus 2 into 3x minus 5 into x plus 3 is less than 0. So students, पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है. So second step we have coefficient of variable of all factor positive. So see, the coefficient of this factor x is 1 which is positive, 3 which is positive, x the coefficient is 1 which is positive. So now let's come with the third step. Find the roots of inequality by equating each factor to 0. Now we will find out the critical point. How we find? So x minus 2 equal to 0, इक्वेट करेंगे इस फैक्टर को 0 के साथ, तो x की वैल्यू आती है 2. सिमिलरली वी टेक द नेक्स्ट फैक्टर 3x minus 5 equal to 0. So 3x is equal to 5 and the value of x is 5 by 3. This is our second critical point. And x plus 3 equal to 0. So x is equal to minus 3. So these are known as testing point also. The value of x known as critical point as well as the testing point also. So now let's come with the fourth point. Plot the point on the number line. हमारे पास points आ गए हैं, इनको अब number line पे plot करना है. So number line, as you know, this is plus infinity and this one is minus infinity. So arrange these numbers. So we can say that minus 3 is here, then after that 5 by 3, then after that 2. So let's come to the fifth point. Put positive on the extreme right. Start moving towards left. Now extreme right में ये है आपके पास, तो हमने पॉजिटिव साइन लगाना है. सी 2 वैल्यू जो है वो 2 वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इस फैक्टर से आती है. सो इस फैक्टर की पावर है, इस फैक्टर की पावर है 1. 1 मीन्स ऑड. इफ देयर इज ऑड साइन तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में बन जाएगा, राइट. आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है 5 by 3. 5 by 3 इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर है 1. अगेन 1 इज ऑड, इसका मतलब कि ये साइन फिर चेंज होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा. माइनस 3 पॉइंट इस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर की पावर है 1. 1 मीन्स ऑड, यानी कि ये पॉइंट, ये साइन जो है ये प्लस है तो ये चेंज होगा साइन, इट इज माइनस. सो नाउ वी हैव लेस देन 0. ये पूरा हमने नंबर लाइन के ऊपर बना लिया. हमें अब ये देखना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 मीन्स डिक्रीजिंग वैल्यू, राइट. तो लेस देन 0 कौन कौन सी वैल्यू है? एक ये आएगी और एक ये आएगी, ठीक है. इसको हमने कैसे अरेंज करना है? माइनस इन्फिनिटी टू -3. सी स्टूडेंट्स,
this is less than 0. Less than 0 it means that -3 is not included. तो आपके पास ओपन इंटरवल लगेगा. अगर मेरे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, कोई भी इन्फिनिटी है, तो हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट ही रहेगी. साथ में यूनियन 5/3 एंड 2, फिर से हमारे पास ओपन इंटरवल रहेगा. ठीक है, ये दोनों जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आते हैं और दोनों जो है वो लेस देन 0 आपके पास देता है. दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल एंड दैट इज x² + 3x - 28 लेस देन इक्वल टू 0. तो हम पहले स्टेप पे जाएंगे, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. पहले इसका फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. वी हैव x² फैक्टर 28 के बनते हैं 7 × 4. 7 - 4 = 3. सो आपने स्प्लिट करना है 3x को बाय 7x - 4x - 28 लेस देन इक्वल टू 0. एज यू नो, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 के ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है? x will be the common. Inside is x + 7. Then minus and minus. It means that minus is the common. 4 and 28. So 4 is the common. Here is x + 7 less than equal to 0. Again, we have these two terms common. So we get x + 7 taking as a common. इनसाइड आपके पास बनेगा ये वाला x -4 लेस देन इक्वल टू 0. हमारे पास फैक्टर बन गए हैं. अब हमने चेक करना है कि क्या इनके कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं. तो कोएफिशिएंट पहले फैक्टर का भी पॉजिटिव है, सेकेंड फैक्टर का भी पॉजिटिव है. इफ दैट इज नॉट पॉजिटिव, मेक इट पॉजिटिव. राइट. सो हमारे पास दोनों फैक्टर के जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है. नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी बाय इक्वेटिंग द फैक्टर टू 0. इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ में. सो x + 7 = 0. द वैल्यू ऑफ x विल बी -7. एक क्रिटिकल पॉइंट ये निकल गया. सिमिलरली वी फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सेकेंड फैक्टर. सो x is equal to 4. दिस इज आवर सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट. जैसे ही हमारे पास पॉइंट निकल जाते हैं, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर लेने हैं. ये है +∞, दिस इज -∞. -7 विल कम टूवर्ड्स लेफ्ट और 4 विल टूवर्ड्स राइट. ठीक है. अब हमारे पास प्लस साइन ऑन द एक्सट्रीम राइट. हमने प्लस साइन एक्सट्रीम राइट पे लगाया. अब चेक किया कि 4 पॉइंट जो है वो कौन से फैक्टर से आया. ये इस फैक्टर से आ रहा है. 4 पॉइंट इस फैक्टर से आ रहा है. इसकी पावर है 1. इसका मतलब ऑड है. अगर ऑड पावर है तो चेंज करेंगे साइन को. तो हमने साइन चेंज कर दिया. नाउ लेट्स कम टू -7. -7 इस फैक्टर से आ रहा है. इसका पावर है 1. 1 मीन्स फिर से ऑड. अगर ये माइनस है तो चेंज होगा साइन, इट विल बी प्लस. राइट. अब आपको चेक करना है कि आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 टर्म्स आनी चाहिए और कौन से इंटरवल में आ रही हैं. हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि लेस देन की बात होती है तो ये लेसर नंबर है. ठीक है. ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है. इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं. हमारे पास है -7 और 4. लेकिन स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल है. इट मीन्स दैट ये -7 भी और 4 भी ये दोनों इंक्लूडेड टर्म है.
इंक्लूडेड टर्म है, इसलिए ये वाले क्लोज इंटरवल में आएंगे। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट।